So Soviet Union का approach to maintain political Islam was a very complex mixture. This mixture comprised of Soviet ideological commitment, militant atheism, and most important, a centralized control. The fundamental ideological commitment was towards Lenin and Marx, that religion is a control tool. Uzbek Socialist Republic में there were 20,000 mosques in 1917. By 1940s, the total number of mosques was less than 1,000. SADUM, SADUM, Spiritual Administration of the Muslim of Central Asia and Kazakhstan. By pioneering its control over Soviet Central Republics, ने इतना बड़ा इतना डिटेल्ड सेट ऑफ रूल बुक को तैयार किया था. Jai Guruji, welcome to Heartland Diary. Continuing with the topic of an earlier video, चेचनिया में पुतिन. आज डिस्कस करेंगे about how pioneers of keeping Islamic radicalism in check. Pioneers कौन थे? Soviet Union. Pioneers of keeping Islamic radicalism in check, the Soviet Union managed to accomplish that deed. कैसे किया? और इस सक्सेस के थ्रू व्हाट आर सम ऑफ द लेगेसीज, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. सक्सेस तो सक्सेसफुल थे ही, सक्सेस के थ्रू व्हाट आर सम ऑफ द लेगेसीज दैट हैव लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज समथिंग विच वी गोना डिस्कस. इस वीडियो का जो आइडिया है, इस वीडियो के आइडिया के लिए द एंटायर क्रेडिट गोज टू माई ओल्ड फ्रेंड Arshia Malik. Arshia Malik and I have had always been keeping in touch, had numerous phone calls on this particular topic, or I have suggested books to her. I will suggest books to you. तो फिर भी मैंने सोचा था, बिकॉज इट वॉज आर्शिया ओनली हु सेड व्हाई डोंट यू समराइज, तो उसको समराइज करने के लिए एक सोच लिया कर लेंगे. और इन अ लॉट ऑफ सेंस, जैसे मैंने बोला था या मैंने नहीं बोला था, मैं भूल गया कि वो चेचनिया वाला मॉडल जो है, ये उसका आप बोल सकते हो ये उसका प्रिकर्सर है. So Chechnya में what Putin did, a lot of what Putin did was out of the old Soviet handbook. A lot of what Kadyrov did was out of the old Soviet handbook. So in this video we are going to understand in details कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. Okay. So video के through what I would do is I am going to summarize the major points that I consider are important, with the hope, अब serious हो जा रहा है, with the hope that this Soviet model is studied again. कि कोई तो यार इसको deeply study करो. Deeply study करो, extensively study करो. Whichever government, wherever in the world, if you are serious about peace within your borders. Now that is dicey, that is doubtful. मुझे आज के दिन में लगता नहीं European Union is serious about peace inside their borders. But on the off chance that any government is serious about peace within their borders, they need to extensively study the Soviet model. तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट मेजर पॉइंट्स समरी करके ये वीडियो, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन कुछ ऐसा है कि आज के दिन में आप कहीं भी बोलो, क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, कहीं भी बोलो, आप यूएसए बोलो, यूरोपियन यूनियन बोलो, ऑस्ट्रेलिया बोलो, इंडिया बोलो, nobody is confident, nobody is 100% confident about domestic peace inside their borders. So that is the reason why, I mean, maybe you could call me an old school guy who still considers nation states and civilization states and empire states etc. important. हो सकता है हम लोग सचमुच में borderless world के तरफ जा रहे हैं और कोई एक nation is not important, naturally peace within the border is not important. But as I said that you can call me old fashioned, there is a certain amount of hope of the sustainability and of the long life of civilization states and nation states. उसको दिमाग में रख के I made the video. I also made the video, as I said, कि right now it is relevant. This is the time when we should be talking about it, and on the off chance that any country is serious about domestic peace and security, this is a good sort of a summary which that nation can take into account. तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. whoever is watching for the first time, consider subscribing. आप Heartlanders जो है मेरे साथ already, you can consider commenting for better reach. You can consider sharing it amongst your friends and families for more and more circulation to spread awareness. So we'll take a look at the broader points now. Let's get to the main topic. USSR का approach to manage political Islam, Salafi Wahhabism in particular, क्योंकि political Islam
20th सेंचुरी में पॉलिटिकल इस्लाम इज probably interchangeable with Salafi Wahhabism. So Soviet Union का approach to maintain political Islam was a very complex mixture. This mixture comprised of Soviet ideological commitment. This had Soviet secularism, which was bordering on atheism, militant atheism, if I could use the word, and most important, a centralized control. So the three most important things इंट्रोडक्शन के चैप्टर में जो आएंगे, वन इज सोवियत आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, वन इज सेक्युलरिज्म बॉर्डरिंग एथेइज्म ऑफ्टन ऑन मिलिटेंट एथेइज्म एंड अ सेंट्रलाइज कंट्रोल. इन तीन को कंबाइन करके यूएसएसआर ने एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस डिजाइन किए और फिर उसको हैविली इंप्लीमेंट किए थे अलोंग द एंटायर सेंट्रल एशियन रीजन वेयर the Muslim majority republics, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, etc., were there as a part of the map of Soviet Union. Okay, coming to the first point, ideological commitment. तो जहाँ तक ideological commitment का सवाल है, the fundamental ideological commitment was towards Lenin and Marx. Lenin and Marx का जो view था, that was the core of their fundamental ideological commitment. Lenin और Marx का view क्या था? That religion is a control tool. और state authority जैसे अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, विच दे वुड ऑफ कोर्स, तो रिलीजन इज द मोस्ट सीरियस कॉम्पिटिटर इन टर्म्स ऑफ अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ स्टेट कंट्रोल. हेंस देयर वाज दिस अर्जेंट नीड टू कोडिफाई इट्स रूल्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन द रीजन. मतलब इस रीजन में एक ही शेर है विच इज द स्टेट अथॉरिटी. स्टेट अथॉरिटी इज गोइंग टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ऑन पीपल. रिलीजन का जहाँ तक है, रिलीजन जो सदियों से करते आ रहे हैं, देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ इंडोक्ट्रिनेशन करके दिमाग में कुछ रिलीजियस फर्वर पैदा कर देते हैं, उसमें कंट्रोल करना आसान हो जाता है. लेकिन इस रीजन में राजा तो एक ही रहेंगे. सो रिलीजन को अगर रहना है तो हम लोग कोडिफाई करेंगे कि रिलीजन का रूल्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होना है और क्या नहीं होना है. So this was the result of their ideological commitment towards Marxist-Leninist view that religion is a control tool. So they were open about it. कि बस religion is a control tool, state is a control tool, we are the more powerful ones, we are the state, we want to control, so religion has to take a back seat. No ambiguity, no beating around the bush, no sweet talkings, nothing. तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया? दो तीन चीज़ किया. पॉइंट नंबर वन, द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड वाज total repression of religious institution, leadership, etc., etc. Religious institutions, मतलब वो schools, masjids, whatever was there. So Bolshevism के बाद the government initiated the closure of the religious institutions and they did it very systematically. So like 1930s के decade में thousands of mosques and madrasas and religious schools and everything were closed. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. उज़्बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो आज उज़्बेकिस्तान है, Uzbek Socialist Republic में there were 20,000 mosques in 1917. By 1940s, the total number of mosques was less than 1,000. इंडिया में सीन कुछ उल्टा है. So Uzbek SSR had 20,000 mosques in 1917, 1920, 20s के decade में पकड़ो. 20 साल बाद 40s के decade में 1,000 mosques. What happened to this mosque? They were confiscated, they were repurposed for secular use. Warehouse, cultural center, example आज के दिन में भी चल रहा है, आपको पता है. I don't have to take the name. कहाँ चल रहा है, कहाँ mosques are being remodified into something else. वो legacy के बारे में जब बात करेंगे सब ये सब example फिर से लेंगे. What did they do to repress religious institutions and leadership? The next thing that they did was persecution of the religious leader. Islamic clergies were targeted as potential counter-revolutionaries. तो result क्या था? अरेस्ट करो, एग्जाइल करो, मर्डर करो, शूट करो, गायब करो, डू व्हाटएवर. व्हाट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट? देयर वाज नो लीडरशिप. सबको तो मार दिया, गायब कर दिया, सब कुछ कर दिया. फिर लीडरशिप ही नहीं रहा कि कोई पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करे अंडर द गार्व ऑफ रिलीजन. सो द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट साथ साथ में गॉट डाइल्यूटेड. और इसके साथ देयर वाज अ स्टेट लॉन्च्ड एंटी रिलीजियस कैंपेन which was done through the likes of League of Militant Atheists. मैंने बोला था कि their secularism bordered on atheism, कभी कभी तो militant atheism थे. So there was a militant atheist का a group which was
मतलब उसका नाम भी था मिलिटेंट एथेइस्ट, दे वर कॉल्ड लीग ऑफ मिलिटेंट एथेइस्ट. सो दे लॉन्च्ड एंटी रिलीजियस कैंपेन. इसका काम क्या था? इसका काम था रिडिक्यूलिंग ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस और प्रमोटिंग साइंटिफिक एथेइज्म. ओके, एट अ वेरी कल्चरल लेवल. कैसे करते थे? यू नो, ये देहाती चीज़ है, ये बैकवर्ड चीज़ है, ये ट्राइबल चीज़ है, ये मीडियवल चीज़ है. वी आर मॉडर्न सोवियत पीपल, वी आर लाइक फ्रेडरिक नीचेस उबरमेंश, वी आर द फ्यूचर, जहाँ पे कोई कुछ नहीं रहेगा, देर इज़ ओनली गोइंग टू बी क्लास एट्सेट्रा एट्सेट्रा, नो रिलीजन, नो नथिंग, कहाँ पढ़े हो तुम लोग. सो देयर वाज अ, जिसको आज के दिन में गैसलाइटिंग बोलते हैं. सो दैट वाज द वे दिस मिलिटेंट एथेइस्ट यूज्ड टू वर्क. सो दे स्टार्टेड प्रमोटिंग साइंटिफिक एथेइज्म. ये इंस्टीट्यूशनल लेवल में चला गया एक टाइम के बाद, और इतना इंटेंस था कि 20s और 30s के डेकेड में द एंटायर कल्चरल लेजिटिमेसी ऑफ इस्लाम गॉट रिड्यूस टू जीरो. तीसरा क्या चीज़ किया ये रिप्रेशन में? दे लिमिटेड रिलीजियस एजुकेशन, allowing only a small number of state approved madrasa. एक ऐसा मदरसा था जिसका नाम था मीरी अरब मदरसा इन बुखारा. ऐसे कुछ 2-4 रह गया, बाकी सबको बंद करो. इससे क्या हुआ? रिलीजियस नॉलेज डिसेमिनेशन वाज वेरी टाइटली कंट्रोल्ड. नेक्स्ट स्टेज, व्हाट डिड दे डू इन द सेकंड स्टेज? दे created state controlled religious body. If I were to suddenly clamp down on religious institution और इसको बंद कर दिया, religious leader को गायब कर दिया, लोगों में एक कल्चरल जो इन्फ्लुएंस था उसको मैंने ज़ीरो कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, एक वैक्यूम सब पैदा हो जाता है, और वैक्यूम में कोई भी आके घुस सकता है. सो उसने ये सोच के ये जो वैक्यूम तैयार होगा इसमें तो हम लोगों को कुछ डालना पड़ेगा. सो क्या डालेंगे उसमें? एक स्टेट कंट्रोल्ड रिलीजन क्रिएट करो. सो द नेक्स्ट स्टेज वाज क्रिएशन ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड रिलीजियस बॉडीज. तो भी जो भी कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज था, टू मैनेज द रिमेनिंग रिलीजियस एक्टिविटीज, सोवियत यूनियन ने क्या किया? स्पिरिचुअल सादुम, SADUM, स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुस्लिम ऑफ सेंट्रल एशिया एंड कजाकिस्तान. 1940s, 45, 43, 44 इस टाइम में ये साडुम को इस्टेब्लिश किया. इट वाज अ स्टेट कंट्रोल बॉडी. इस्लामिक प्रैक्टिस को रेगुलेट करते थे. जो क्लर्जी थे, जो क्लर्जी अपॉइंटमेंट था, दे वुड ओनली अपॉइंट लॉयलिस्ट क्लर्जी, और ओवरऑल ऑडिट करते थे टू एंश्योर दैट रिलीजियस एक्टिविटीज जो कुछ भी था विच वाज अलाइंड विद सोवियत पॉलिसीज. टाइट कंट्रोल. साडुम का जब इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, साडुम फतवा भी इशू करने लग गए, लाइक प्रमोटिंग. और फतवा में क्या करते थे? सोशलिज्म को प्रमोट करते थे, कंडेम, पॉलिटिकल डिसेंट जो था उसको कंडेम करते थे. ओके, और आज के दिन में शायद ये सिर्फ एक वीडियो के टॉपिक है, लेकिन आप सोच सकते हो दिस वाज अ पायनियरिंग इंटीग्रेशन ऑफ इस्लामिक अथॉरिटी विद सोवियत आउटलुक. दिस वाज नेवर डन बिफोर. दिस preempted all different kinds of contrarian movements emerging from Soviet Central Asia. You know, you create a religious body, much like वो चेचनिया वाला वीडियो, much like Kadirov's Sufi version of Islam which is on in Chechnya. Sadum was a state created religious body, state controlled and created religious body, which used to determine the entire course of religious activities in Soviet Union pertaining to Islam. एक टाइम में जो फतवा इशू करते थे, but that fatwa was again keeping the Soviet line in mind, कि सोशलिज्म को प्रमोट करने का फतवा, पॉलिटिकल डिसेंट को कंडेम करने का फतवा. दिस वाज अ ब्रिलियंट मूव, दिस वाज अ पायनियरिंग मूव. दिस वाज, एज आई सेड, दैट दिस इज आज के दिन में शायद एक वीडियो का टॉपिक, ऐसे एक वीडियो का टॉपिक कि यू नो दुनिया के कोई कोने में बैठ के एक आदमी बैठ के कुछ वीडियो टॉपिक बना रहे हैं, एंड देयर वुड बी अ फ्यू गाइज दैट वुड लिसन एंड probably romanticize about the past and think about how things were. But तब के दिन में it was like really something. It was like something which never been done before. तीसरा चीज़ क्या किया? Cultural assimilation and Russification of the entire Muslim crowd. Language और education में reform लाए. सोवियत स्टेट ने अरबिक स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर दिया सिरिलिक अल्फ़ाबेट से. सो सिरिलिक अल्फ़ाबेट से क्या हो गया कि सिरिलिक अल्फ़ाबेट्स पढ़ने लगे. अगेन गो बैक टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला वीडियो, इंसुलेटेड हो गए. सो अरबिक ट्रेडिशनल इस्लामिक टेक्स्ट विच वर रिटन इन अरबिक, उसका एक्सेस भी बंद हो गया, और वो आने से भी किसी को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मान लो 10 साल से, पिछले 10 साल से या
15 साल या 5 साल आपने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया कि एवरीबडी कैन ओनली रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड सिरिलिक अल्फ़ाबेट्स एंड हैव नो आइडिया अबाउट अरबिक अल्फ़ाबेट्स, तो किसको समझ में आएगा क्या है? सो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन रिफॉर्म। हाउएवर दिस वॉज लैंग्वेज से इंसुलेट कर देना। इसके साथ साथ वो मिलिटेंट एथेइस्ट वाला ग्रुप जो मैंने बोला था, प्रमोशन ऑफ सोवियत आइडेंटिटी, these groups and Soviet Union centrally sort of encouraged the Soviet identity. You know, Soviet identity क्या था? Class value, socialist value. Religious affiliation कुछ नहीं, बकवास है. Religion is an opium. Ethnic affiliation कुछ नहीं, बकवास है. It's like outdated. इस्लाम रिलेटेड कल्चरल प्रैक्टिसेस जो थे वो दे वर डिस्करेज, दे वर एक्टिवली डिस्करेज। जैसे मैंने बोला था यार, ये नॉन रिफाइंड है, देहाती है, मीडिएवल है, क्या कर रहे हो तुम लोग? यू गाइस आर ब्लडी अनसोफिस्टिकेटेड, यू गाइस आर गंवार्स एंड ऑल। स्टार्टेड प्लेइंग ऑन दिस पीपल। इसके साथ साथ और ये सिर्फ हवा में बात नहीं किया, इट वॉज नॉट जस्ट प्रोपेगेंडा कि बहुत सारे चीज़ बोल के चले गए और ऑल्टरनेट कुछ नहीं दिया। नो, एक तरह से तो यू आर प्रोमोटिंग सोवियत आइडेंटिटी विच इज़ क्लास वैल्यू एंड और सोवियत आइडेंटिटी को समझने के लिए या सोवियत आइडेंटिटी के अंदर डीपली जाने के लिए जब कोई एवरेज उज़्बेक या कोई एवरेज कज़ाक घूम के पीछे देखेंगे, देन व्हाट वुड ही सी? थर्ड पॉइंट, अर्बनाइजेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर रैपिड चलने लग गया वहाँ पे। ओके, उसके साथ साथ सोवियत कलेक्टिवाइजेशन आ गया। एंड ये दो चीज़, अर्बनाइजेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन में क्या हो गया? दिस डिसरप्टेड द ट्रेडिशनल रूरल कम्युनिटीज जहाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर प्रिडोमिनेंट। एज मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड मूविंग, सो उज़्बेक चले गए कज़ाकिस्तान में, कज़ाक चले गए क्राइमिया में, कहीं से और कौन चले गए साइबेरिया में, वहाँ पे काम करने लग गए। दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर न्यू कम्युनिटीज़। अगेन गो बैक टू दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला वीडियो। सो ट्रेडिशनल रूरल कम्युनिटीज़ गॉट डिसरप्टेड, दे गॉट वीकेंड। वहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर प्रिडोमिनेंट। सो द मोमेंट एक सेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज रिलोकेटेड, वो नया कोई उसको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो रिलीजन बेस्ड जो कम्युनिटी टाइज थे वो सब वीकन हो गए। सो दैट वाज कल्चरल एसिमिलेशन एंड रूसिफिकेशन में। कल्चरल एसिमिलेशन और रूसिफिकेशन में क्या किया? एक तो लैंग्वेज को चेंज करके सिरिलिक अल्फाबेट्स लाके इंसुलेट कर दिया, बाहर से आने का लैंग्वेज। सेकेंड क्या किया? सोवियत आइडेंटिटी को प्रमोट किया, about class welfare and about social welfare, about class and socialist values जो importance देते हैं, और ethnic और religious identity को जो कोई importance नहीं देते। ये था सोवियत आइडेंटिटी प्रमोट करना। थर्ड इज उसके साथ साथ आप अर्बनाइजेशन करो, कलेक्टिवाइजेशन करो, मूव पीपल फ्रॉम हेयर टू देयर, लेट देम बिल्ड देयर ओन कम्युनिटी विद सेट ऑफ डिफरेंट पीपल, जहाँ पे रिलीजियस वैल्यूज या रिलीजियस होल्ड या ट्रेडिशनल कम्युनिटी का कोई खास रोल नहीं रहेगा। आइसोलेशन, इसके साथ साथ जैसे लैंग्वेज के थ्रू आइसोलेट कर दिया सिरिलिक अल्फाबेट्स लाके, वैसे आइसोलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इस्लामिक इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट पॉइंट था, बॉर्डर्स बहुत टाइटली कंट्रोल करने लग गए। द यूएसएसआर कंट्रोल्ड बॉर्डर्स वेरी टाइटली। दे रेस्ट्रिक्टेड कॉन्टैक्ट विद द ब्रॉडर मुस्लिम वर्ल्ड, ब्रॉडर इस्लामिक वर्ल्ड। इसमें तो सलाफिज्म, वहाबिज्म जो भी जितना की तभी था सब बाहर रह गया। एंड दिस वॉज सो गुड और दिस वॉज सो इफेक्टिव कि सिर्फ बॉर्डर कंट्रोल नहीं, दिस ओवरऑल वॉट एवर रूसिफिकेशन ऑफ सोवियत सेंट्रल एशिया हुआ, ये दिस वॉज सो इफेक्टिव कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी रशियन फेडरेशन बन गया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अलग हो गए। उस टाइम में भी जो सऊदी अरेबिया ने अपना वहाबी इस्लाम को बहुत हैवीली प्रमोट किया, सेंट्रल एशिया में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इसका। एनीवे, दूसरा टॉपिक है, आ जाते हैं यहाँ पे। एक तो है आइसोलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इस्लामिक इन्फ्लुएंस। क्या किया? बॉर्डर कंट्रोल किया। सो नो एंट्री फॉर वहाबी सलाफी प्रीचर्स, नो एंट्री फॉर वहाबी सलाफी आइडियाज़, नो एंट्री फॉर ऑल दिस थिंग्स। फिर क्या किया? अंदर से जो बाहर जा रहा है उसको क्या करेंगे? हज पे जो जा रहा है रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हज वॉज हैवीली रिस्ट्रिक्टेड। स्टेट जिस डेलीगेट्स को अप्रूव करेंगे वो डेलीगेट्स जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? एक्सपोजर भी सीवियरली रिड्यूस्ड हो गया, कंस्ट्रिक्टेड हो गया। जिसको जाने देते थे, दे वे वेरी अर्बनाइज्ड मुस्लिम पॉपुलेशन, उसको वहाँ जाके वो 7th सेंचुरी 10th सेंचुरी वाला राइट्स एंड रिचुअल्स उसको कुछ खास इंप्रेस नहीं करता। दे रिमेन अनइम्प्रेस्ड। वी आर सोवियट्स, वी आर द नेक्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स।
वी ओनली रिकग्नाइज क्लास एंड सोशलिस्ट वैल्यूज. ये सब medieval, what is all this kind of thing? They started looking down basically, because by the time they had that identity build up, that sense of superiority build up, because these were urbanized Muslim. So they were unimpressed. They were naturally not interested कि यार बाहर का आइडियोलॉजी तो ये है, यहाँ पे हम लोग कितने अच्छे हैं. रिलीजन इज जस्ट कल्चरल, वो भी नहीं, कल्चरल एसोसिएशन भी नहीं अपने साथ, कल्चरली भी रिलीजन एसोसिएटेड नहीं है अपने साथ. व्हेन वी आर अर्बनाइज्ड सोवियत पीपल, एंड बाहर जाके देख रहे हैं कि ये कहाँ ये पड़े हैं, कौन सा कब कौन 100 साल 200 500 साल पहले का ये लोग सब लेके दे आर रिक्रिएटिंग हिस्ट्री एंड दे आर रिपीटिंग एंड डूइंग ऑल दैट इनैक्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड थिंग्स लाइक दैट. दे वर वेरी अनइम्प्रेस्ड कि ये लोग क्या सिखाएंगे हम लोग को, बैकवर्ड मीडिएवल पीपल. उसके छोड़ के स्टेट मॉनिटरिंग भी था on such imports, वो तो है ही, because you have restricted borders, you have restricted language, so on and so forth. Next is socio-economic transformation. Soviet state ने क्या किया? They invested heavily in education, in healthcare, in infrastructure. They raised the literacy level, they raised the living standards. Secular alternatives to religious institutions. For example, very simple, schools instead of madrasas. हॉस्पिटल्स इंस्टेड ऑफ फेथ हीलर्स. इसने ना सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम जो भी था इसको एकदम गायब कर दिया ऑन पीपल. अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज कलेक्टिवाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंटीग्रेटेड दिस पीपल इनटू द सोवियत इकोनॉमी. सो यही नहीं कि सिर्फ बाहर जाके दूसरा कोई शहर में जाके या दूसरा कोई प्रोविंस में जाके या दूसरा कोई सोवियत में कोई दूसरा सोशलिस्ट रिपब्लिक में जाके काम कर रहे हैं. नो, दे एक्चुअली गॉट इंटीग्रेटेड इनटू द सोवियत इकोनॉमी. So this over a period of time created a new working class, less tied to their own community, less tied to their own village or their own province, less tied to religious structures, religious edicts. Finally, last point, very important point. These were all very thoughtful things for the Soviet Union to do. And the last important point is the hardcore thing, surveillance and security measure, KGB. चूचा भी किया तो suppression through militia, military campaigns like the Basmachi movement of 1920s. इसके अलावा किडनैप करो, abduct करो, infiltrate करो, monitor करो, deport करो, permanent गायब कर दो, exile कर दो, ये तो था ही. Okay. सर्वेलेंस को लेके बहुत सारे किताब भी है, तो उसमें ज़्यादा बोलने का नहीं है. यू नो द गेम सोवियत एंगल से. वाइल वी आर इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स ABCDEF, मतलब हम लोग 7 चीज़ कर रहे हैं इनको, टू इंटीग्रेट दिस पीपल इनटू द सोवियत सिस्टम ऑफ थिंकिंग एंड आइडेंटिटी एंड सो ऑन. उसके साथ साथ सर्वेलेंस भी रखेंगे, और ऐसा सर्वेलेंस रखें, और सर्वेलेंस तो एक ही चीज़ का होता है. वैसे थोड़ा सा भी अपना प्रेस्क्राइब लाइन से हट जाओ तो आपको बिल्कुल गायब कर देंगे. अब आते हैं इम्पैक्ट पे. ये सबका इम्पैक्ट. फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम. बाय द मिड 20th century, political Islam was virtually non-existent in Soviet Central Asia. मूवमेंट्स लाइक वहाबिज्म, जिसको इकोसिस्टम का जरूरत था, बिना इकोसिस्टम का कुछ कर नहीं पाया, वहाबिज्म आ नहीं पाया. रेसिडुअल जो इस्लाम बचा कुचा था, दैट वाज डोमेस्टिकेटेड इनटू अ वेरी प्राइवेट सा, अ वेरी कल्चरल सा प्रैक्टिस बन गया. एंड स्मॉल stains of folk Islam, Sufism, etc. रह गए in very rural areas. The third thing that happened was erosion of Islamic knowledge. Restriction के लिए Islamic scholarship became severely reduced. So by the 70s, Central Asian republics में Islam remained mostly as oral traditions. कुछ tribal ritual, कुछ oral tradition, and some state-sanctioned religious practices. That's it. Nothing else. At the same time, by the 70s, fourth point आ जाता है, when this impact of Islam was getting reduced, the Soviet identity was getting strengthening of Soviet identity in the 70s. So that is the fourth point. So एक point है political Islam को non-existent कर दिया. Number 2 point is जो residual बचा कुचा Islam था उसको thoroughly domesticate कर दिया.
नंबर 3 इज़ जो भी नॉलेज आने का था उसको बंद कर दिया, सो देयर वाज एन इरोजन ऑफ इस्लामिक नॉलेज। तो वो ओरल ट्रेडिशन, कुछ सूफी ट्रेडिशन, कुछ फोक ट्रेडिशन बन के रह गया विलेज में। उसमें भी वो बिकॉज इट्स सेंट्रल एशियन तुर्किक पीपल, तो शमानिज्म का भी इम्पैक्ट आ गया, तो वो थोड़ा सा मिक्सड हो गया। और नंबर 4 इज़ जब ये रिड्यूस हो रहा है, जब ये डाइल्यूटेड हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वैक्यूम तो नहीं रख सकते, तो सोवियत आइडेंटिटी बिकम इज गेटिंग स्ट्रेंथन। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। नाउ पोस्ट सोवियत, अब आते हैं पोस्ट सोवियत। सोवियत यूनियन के डिसॉल्व हो जाने के बाद सेंट्रल एशिया में क्या हुआ। देखिए सेंट्रल एशिया में पोस्ट सोवियत, इफ़ यू आर अ सेंट्रल एशियन ऑब्जर्वर थ्रू आउट 90s, थ्रू आउट 2000, अभी भी मोस्टली द इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस आर वीक। पोस्ट सोवियत इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेडिकल इस्लाम स्टार्टेड, शुरू किया था, बट द इंस्टीट्यूशन रिमेन सो वीक। मतलब हम इन्फिल्ट्रेशन करके भी क्या करेंगे, तुम्हारे पास तो इकोसिस्टम ही नहीं है। इट्स लाइक दैट, सो वीक, सो नॉन एग्जिस्टेंस, सो लाइक, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस नहीं बोलेंगे, थे लेकिन सिर्फ नाम का वास्ते थे। ओके, तो इतना वीक था दैट इट टुक अ लॉट लॉन्गर टाइम देन यूजुअल टू फाइंड अ फुट होल्ड। और इंटरेस्टिंग, आप फुट होल्ड मिला भी तो छोटा मोटा डिसऑर्गेनाइज ग्रुप लाइक हिजबुत तहरीर, बाद में इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ये सब आपको मिलेगा। वो भी उज़्बेकिस्तान में फरगाना वैली में थोड़ा सा भी आपको मिलेगा कि वहाँ पे फुट होल्ड मिला। प्लेसेस लाइक कजाकिस्तान एंड ऑल, दे वर नॉट बॉदर्ड, लार्जली दे आर नॉट बॉदर्ड इवन नाउ। लेकिन वो थोड़ा सा भी अगर जो फुट होल्ड मिला थ्रू इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, हिजबुत तहरीर एट्सेट्रा, दिस ट्रिगर द सेंट्रल एशियन लीडर्स टू क्रैक डाउन इमीडिएटली ऑन दिस ग्रुप्स, because most of them chose to continue the Soviet method of control. Why? Because जो सेंट्रल एशियन लीडरशिप आए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंट होने के बाद, इस्लाम करीमोव और सफर मुराद नियाज़व, they wanted to remain leaders for life. तो बस लीडर्स फॉर लाइफ मतलब क्या, कंप्लीट स्टेट कंट्रोल। जाहिर सी बात है, कंप्लीट स्टेट कंट्रोल मतलब क्या, तुम्हारे पास तो हैंडबुक है ये सोवियत यूनियन का हैंडबुक, वाई री इन्वेंट द व्हील, उसी को चलाते जाओ। So naturally there was no need for appeasement. The moment you see some kind of a radical Islamism taking shape, you crack down on these people. So इसीलिए political Islam remained limited in post-Soviet CIAs also, and post-Soviet Central Asian republics also. आम जनता का जहाँ तक बात है, ये तो था स्टेट का सवाल। आम जनता का बात जहाँ तक है, इस्लामिक रिचुअल्स प्रैक्टिसेस, मतलब मेन स्ट्रीम इस्लाम रिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ ये लोग का डिस्कनेक्ट इतना स्ट्रांग था कि मोस्ट ऑफ दिस पीपल हैव अ वेरी फ्रैगमेंटेड अंडरस्टैंडिंग। और जो भी कुछ इस्लामिस्ट मूवमेंट है, मोस्ट ऑफ देम हैव रिमेन नेशनलिस्ट इन नेचर। मोस्ट ऑफ देम हैव रिमेन, हल्का फुल्का इस्लामिक मूवमेंट जो भी है, अभी थोड़ा ताजिकिस्तान में हो रहा है, मोस्ट ऑफ देम हैव रिमेन नेशनलिस्ट इन नेचर। अब नाउ आइसिस, थ्रू आइसिस अफगानिस्तान, खोरासान ISKP, नाउ आइसिस इज ट्राइंग टू चेंज दैट, स्पेशली इन ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट वो ग्लोबल उम्मा वाला फंडा वो लाने का कोशिश कर रहा है। बट हिस्टोरिकली जो भी था, जितना भी था, वो मोस्टली नेशनलिस्ट इन नेचर। Now comes another very interesting सब टॉपिक। ये जो सोवियत यूनियन ने इतना सक्सेसफुली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को कंट्रोल में रखा, फॉर द वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, और जो इसने टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट ऑफ एग्जीक्यूशन, पायनियरिंग क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, नाउ दीज टेम्पलेट्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज। एक एक करके मैं एग्जाम्पल लेके, मतलब एक टेम्पलेट का एक आधा पॉइंट लेके मैं आपको कंट्रीज का एग्जाम्पल देता हूँ। सोवियत ने क्या किया था, सेंट्रलाइज स्टेट कंट्रोल एंड ओवरसाइट ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आज के दिन में कौन करते हैं, इजिप्ट एंड टर्की। पॉइंट नंबर 2 क्या करते थे, रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। आज के दिन में कौन करते हैं, चाइना। और क्या करे थे, सेक्युलराइजेशन थ्रू डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब किए थे। कौन करते हैं, फ्रांस करते हैं, इंडोनेशिया करते थे, टर्की किए थे, एंड टर्की किए थे वेरी सक्सेसफुली, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अतातुर्क। ओके, सो these are the 3 countries that you can think of as examples that have taken Soviet template. Number 4, controlling through law and security and surveillance etc etc. कौन करते हैं, ट्यूनीशिया करते हैं, चाइना करते हैं। और एक चीज़ सोवियत करते थे, प्रमोटिंग आइडियोलॉजी और कल्चर बेस्ड आइडेंटिटी थ्रू मैसिव प्रोपेगेंडा एंड PR कैंपेन। टर्की, अतातुर्क का टर्की, आज के दिन में सिसीज इजिप्ट करते हैं, एंड स्ट्रेंजली वियतनाम करते हैं। वियतनाम इज हैवी ऑन द कल्चर बेस्ड आइडेंटिटी।
Another very important thing that comes to mind, and I have made a note of it, is isolation from external influences. North Korea, Iran, even Central Asian republics to some extent. Central Asian republics को आप हटा के रखे भी तो you can think of North Korea and Iran as classic example कि बाहर का influence अंदर आने नहीं देंगे, which is typical Soviet Union. So Soviet Union actually, by pioneering its control over Soviet Central Republics, ने इतना बड़ा, इतना डिटेल्ड, इतना गहरा एक सेट ऑफ रूल बुक को तैयार किया था और उसको एग्जीक्यूट भी किया था कि आज के दिन में बहुत सारे कंट्रीज़ वहाँ से एक आधा पन्ना लेके, एक आधा पॉइंट लेके करते हैं. वैसे क्रिटिसाइज तो सोवियत यूनियन को सब खुले आम करते हैं, ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन जहाँ तक सोवियत एफिकेसी और सोवियत मॉडल का सवाल है, वहाँ से एक आधा पार्ट्स लेके हर बहुत सारे कंट्रीज, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अपने अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड दे हैव डन इट सक्सेसफुली ऑल्सो. सो बॉटम लाइन, come to the end of the video, bottom line, conclusion. Personally, my opinion, Soviet Union had the most exhaustive and the most comprehensive strategy that anyone has ever had to control political Islam. So when we talk today about the success of Vladimir Putin in Chechnya, Putin probably did not create all of these things on his own. He probably had a lot of help from the old Soviet playbook. So this playbook that Soviet Union had to control political Islam still remains the most exhaustive and the most comprehensive playbook that anyone has ever had. This combined suppression, this combined institutional control, this combined cultural assimilation, this combined socio-economic, socio-political transformation, surveillance, reduction of influence, external influence, a lot of things. This still remains a framework. This Soviet handbook still remains a framework that offers a template for keeping religion out of politics through state control, through secularization, and through surveillance and security. The state remains the overall control, the top boss, the only boss. To enable and to fetch acceptance for state control, there has to be secularization of people. And secularization अपना इंडिया वाला secularization नहीं, secularization मतलब secularization in the true sense. And security measures for whoever deviates. इसमें एक पॉइंट आ जाता है, बहुत सारे व्यूअर्स को लगेंगे कि yes, this calls for a complete single authority control system. Yeah. Which is probably a little difficult in democracy. But then again, there are loads of things which are difficult in democracy. Democracy has been a very feel-good kind of an existence without a lot of decisive things happening in those countries. और प्लीज़ अमेरिका का एग्जांपल मत लीजिए, अभी तक तो पता चल गया है कि अमेरिका इज़ एवरीथिंग बट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो wherever you see there's been transformational developments in Singapore or in Saudi Arabia these days, or in UAE or wherever, and then or in China or probably in Russia during Vladimir Putin's time, it's been a single authority control government. Anyway, so single authority control government या single authority state control, single authority of control, इसका कुछ unintended consequence भी हो सकता है. However, क्योंकि इसका कोई फैक्ट फिगर वाला काउंटर नहीं है, एज आई सेड कि इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, बिकॉज लिबरल जो ज्ञानीज है आजकल के दिन में बहुत सारा बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा कुछ बांटते रहते हैं अबाउट मॉडर्न स्टेट्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एज आई सेड, देयर इज नॉट मच ऑफ फैक्ट फिगर वाला काउंटर. फाइनली आते हैं बुक्स पे. I have two books in mind that I'm going to recommend to the viewers. One by a Russian author, one by a Western author. Russian author का है Islam in the Soviet Union by Yakov Roy. इस जिस चीज़ को डिस्कस किया है सब है इसमें, and much more details and everything. This book is very good. This book is my first choice and my only choice from the Soviet side, because this book is based on Soviet archival material. इसने याकूब रॉय ने सोवियत आर्काइवल मटेरियल को रिसर्च किया और उसके बाद ये बुक तैयार किया. वेस्टर्न एंगल से अगर एक किताब रेकमेंड करें तो वो सोवियत एंड मुस्लिम, द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इस्लाम इन सेंट्रल एशिया बाय इरीन तसार. व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज दैट इट इज न्यूएंस्ड. तसार हैज ओपनड अप एरिया on how the Soviet state was successful in checking political Islam and how that stemmed
ये जो सोवियत का सक्सेस था इन चेकिंग पॉलिटिकल इस्लाम, हाउ दैट स्टेम्ड फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू क्रिएट अ कंट्रोल स्पेस फॉर इस्लामिक इंस्टीट्यूशन. ये कंट्रोल स्पेस फॉर इस्लामिक इंस्टीट्यूशन दैट अलाउड सर्टन थिंग्स, दैट डिसअलाउड सर्टन थिंग, allowed limited expression, disallowed radicalism. He has very well explained this in this book. Thresholds को explain किया है, क्या क्या red line था, क्या क्या do's and don'ts था, उसको बहुत अच्छी तरह से explain किया है. दोनों के अगर मैं overview बोलना चाहूँ, याकूब रोई का जो किताब है, that's more of a kind of a bird eye, wide angled, you know. And Tassar is more like focus on the CI, it's more like on the ground, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, which includes smaller incidents, smaller observations and so on and so forth. So that is it for today. I hope you have liked the video. Do tell me, do put in your comments as to कैसा लगा आपको, and if you like the video, I would request you to share amongst your friends and your families, and people who are watching this for the first time, please considering subscribing to Heartland Harry. Meanwhile, I'll be back with a new video sometimes very soon. Jai Guruji, Jai Hind.